हम पढ़ेंगे ड्यूटोनॉमी 25 चैप्टर, 26 चैप्टर, 27 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से। ड्यूटोनॉमी 25, 26, 27 और बाद में पढ़ेंगे बीएसआई बाइबल में से हिंदी में। रिबान तक हम बारो खुशरा खासा मेरे खुदा परमेश्वर शैतान के झूठ को पिता पर्दाफाश कीजिए, हमारे सामने से हमारे दिलो दिमाग में से झूठ को पर्दाफाश कीजिए और सच को हमारे अंदर पिता खोल दीजिए, ताकि पिता हम सच की ताकत को लेकर हमारे सामने जो भी युद्ध है उसे जीत सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। Deuteronomy 25 chapter. If there be a controversy between men and they come unto judgment, that the judges may judge them, then they shall justify the righteous and condemn the wicked. And it shall be, if the wicked man be worthy to be beaten, that the judge shall cause him to lie down and to be beaten before his face according to his fault by a certain number. 40 stripes he may give him, and not exceed, lest if he should exceed and beat him above this with many stripes, then thy brother should seem vile unto thee. Thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. If a brethren dwell together, and one of them die and have no child, the wife of the dead shall not marry without unto a stranger. Her husband's brother shall go in unto her, and take her to him to wife, and perform the duty of an husband's brother unto her. And it shall be that the firstborn which she beareth shall succeed in the name of his brother which is dead, that his name be not put out of Israel. And if the man like not to take his brother's wife, then let his brother's wife go up to the gate unto the elders, and say, My husband's brother refuseth to raise up unto his brother a name in Israel, he will not perform the duty of my husband's brother, that the elders of his city shall call him and speak unto him. And if he stand to it and say, I like not to take her, then shall his brother's wife come unto him in the presence of the elders, and loose his shoe from off his foot, and spit in his face, and shall answer and say, So shall it be done unto that man that will not build up his brother a house. And his name shall be called in Israel, the house of him that hath his shoe loosed. When men strive together one with another, and the wife of the one draweth near for to deliver her husband out of the hand of him that smiteth him, and putteth forth her hand, and taketh him by the secrets, then thou shalt cut off her hand, thine eye shall not pity her. Thou shalt not have in thy bag divers weights, a great and a small. Thou shalt not have in thine house divers measures, a great and a small. But thou shalt have a perfect and just weight, a perfect and just measure shalt thou have, that thy days may be lengthened in the land which the Lord thy God giveth thee. For all that do such things, and all that do unrighteously, are an abomination unto the Lord thy God. Remember what Amalek did unto thee by the way, when ye were come forth out of Egypt, how he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, even all that were feeble behind thee, when thou wast faint and weary, and he feared not God. Therefore it shall be, when the Lord thy God hath given thee rest from all thine enemies round about in the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven, thou shalt not forget it. 26th chapter. And it shall be, when thou art come in unto the land which the Lord thy God giveth thee to for an inheritance, and possessest it,
and dwellest therein, that thou shalt take off the first of all the fruit of the earth, which thou shalt bring off thy land, that the Lord thy God giveth thee, and shalt put it in a basket, and shalt go up into unto the place which the Lord thy God shall choose to place his name there. And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. And the priest shall take the basket out of thine hand, and set it down before the altar of the Lord thy God. And thou shalt speak and say before the Lord thy God, a Syrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt, and sojourned there with a few, and became there a nation great, mighty, and populous. And the Egyptians evil entreated us, and afflicted us, and laid upon us hard bondage. And when we cried unto the Lord God of our fathers, the Lord heard our voice, and looked on our affliction, and our labor, and our oppression. And the Lord brought us forth out of Egypt with a mighty hand, and with an outstretched arm, and with great trembleness, and with signs, and with wonders. And he hath brought us into this place, and hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey. And now, behold, I have brought the first fruits of the land, which thou, O Lord, hast givest me. And thou shalt set it before the Lord thy God, and worship before the Lord thy God. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thee thine house, thou and the Levite, and the stranger that is among you. When thou hast made an end of tithing of the tithes of thine increase the third year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow, that they may eat it within thy gates and be filled, then thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house, and also have given them unto the Levite, and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all thy commandments which thou hast commanded me. I have not transgressed thy commandments, neither have I forgotten them. I have not eaten thereof in my mourning, neither have I taken away out thereof for any unclean use, nor given out thereof for the dead, but I have hearkened to the voice of the Lord my God, and have done according to all that thou hast commanded me. Look down from thy holy habitation from heaven, and bless thy people Israel, and the land which thou hast given us, as thou swarest unto our fathers, a land that floweth with milk and honey. This day the Lord thy God hath commanded thee to do these statutes and judgments. Thou shalt therefore keep and do them with all thine heart, and with all thy soul. Thou hast avouched the Lord this day to be thy God, and to walk in his ways, and to keep his statutes and his commandments and his judgments, and to hearken unto his voice. And the Lord hath avouched thee this day to be his peculiar people, as he hath promised thee, and that thou shouldest keep all his commandments, and to make thee high above all nations which he hath made in praise, and in name, and in honor, and that thou mayest be an holy people unto the Lord thy God, as he hath spoken. 27th chapter. And Moses with the elders of Israel commanded the people, saying, Keep all the commandments which I command you this day. And it shall be on the day when ye shall pass over Jordan unto the land which the Lord thy God giveth thee, that thou shalt set thee up great stones, and plaister
them with plaster, and thou shalt write upon them all the words of this law when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the Lord thy God giveth thee, a land that floweth with milk and honey, as the Lord God of thy fathers hath promised thee. Therefore it shall be when ye be gone over Jordan, that ye shall set up these stones which I commanded you this day in Mount Ebal, and thou shalt plaster them with plaster, and there shalt thou build an altar unto the Lord in thy God, an altar of stones. Thou shalt not lift up any iron tool upon them. Thou shalt build the altar of the Lord thy God of whole stones, and thou shalt offer burnt offerings thereon unto the Lord thy God, and thou shalt offer peace offerings, and shalt eat there and rejoice before the Lord thy God. And thou shalt write upon the stones of all the words of this law very plainly. And Moses and the priests, the Levites, spake unto all Israel, saying, Take heed and hearken, O Israel, this day thou art become the people of the Lord thy God. Thou shalt therefore obey the voice of the Lord thy God, and do his commandments and his statutes, which I command thee this day. And Moses charged the people the same day, saying, There shall stand upon Mount Gerizim to bless the people when ye are come over Jordan, Simeon and Levi and Judah and Issachar and Joseph and Benjamin. And this shall stand upon Mount Ebal to curse Reuben, Gad and Asher and Zebulun, Dan and Naphtali. And the Levites shall speak and say unto all the men of Israel with a loud voice, Cursed be the man that maketh any graven or molten image, an abomination unto the Lord, he work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place. And all the people shall answer and say, Amen. Cursed be he that setteth light by his father or his mother, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that removeth his neighbour's landmark, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that raiseth the blind to wander out of the way, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that perverteth the judgment of the stranger, fatherless, and widow, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that lieth with his father's wife, because he uncovereth his father's skirt, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that lieth with any manner of beast, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that lieth with his mother-in-law, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that smiteth his neighbor secretly, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that taketh reward to stay an innocent person, and all the people shall say, Amen. Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them, and all the people shall say, Amen. हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। व्यवस्था विवरण 25 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से, हिंदी BSI बाइबल में से। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे, तो न्यायी उसको गिरवाकर और अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोई गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकता है, इससे अधिक नहीं।
लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दांव दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। मृत भाई के प्रति उत्तरदायित्व। 5 वचन से आगे, जब कई कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का विवाह पर गोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपने पत्नी कर ले और उससे पति का भाई का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इसराइल में से मिट ना जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उससे विवाह करना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे, मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इसराइल में बनाए रखने में से मना कर दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे मुझे इससे विवाह करना नहीं भावता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इसराइल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। अन्य नियम। 11 वचन से आगे, यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना। अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखारे न रखना। अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखारे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अमालेक के सर्वनाश की आज्ञा। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुम पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, और तुम इस बात को न भूलना। हम पढ़ेंगे 26 अध्याय पहले वचन से। पहली उपज का अर्पण। पहले वचन से, फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुँचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति को कि जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजक के पास जाकर यह कहना, मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूँ कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की को हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूँ। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने रख दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था
जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहाँ परदेशी होकर रहा। और वहाँ उससे एक बड़ी और सामर्थ्य और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई। और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारे सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूँ। जब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना। और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे, उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपने सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय परदेशी, अनाथ और विधवा को देना, कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उसमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इज़राइल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। परमेश्वर की निज प्रजा। 16 वचन से आगे। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी विधियाँ, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है, कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। हालेलुया! कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा। और अगला अध्याय पढ़ेंगे, 27 अध्याय। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 27 अध्याय पहले वचन से। पत्थर पर खुदी आज्ञाएं। पहले वचन से। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबको मानना। और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुँचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना ओके
और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और यही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उस पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना, और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर उस व्यवस्था के सब वचनों को स्पष्ट रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेविया याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा, हे इस्राएल, चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका पालन करना। अभिशाप वचन 11 वचन से आगे। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बन्यामीन गिरेजेम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेविया लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे, शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करके, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे, आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे, आमीन। हालेलुया। इसके लिए मुझे किसी का सिस्टर बोलने को भी डर लगता है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ जो प्रकार के अटैक्स मुझ पर हुए हैं, वो अपने ही घर के स्त्रियों के, बच्चों के द्वारा हो रहे हैं। ओके, मतलब उन जो अटैक करते हैं उन्हीं के स्त्रियों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर वो लोग जादू टोना करके हमारे ऊपर अटैक डालते हैं। ओके, या फिर उनके बेटियों के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अटैक करके, मतलब कुछ जादू टोना करके फिर हमारे ऊपर वो पावर्स को भेजते हैं। यानी वो पावर्स को जनरेट करने के लिए उनके घर की लेडीज़ लोगों का फीमेल जेनिटल ऑर्गन का वो मतलब यूज़ करते हैं उनको घर में। ओके, तो इसके लिए ना ही वो उनकी बेटी के समान रहती है, ना ही वो रखेल, ना ही वो वेश्या, ना ही वो कुछ नहीं। वो एक जस्ट एक उनके घर का एक औजार बन जाता है, एक औजार जो हथियार बोलते हैं उसको, वैसा बन जाता है। उसका कोई कुछ बाकी ही नहीं रहता है ऐसा कि वो एक फीमेल है बोलने के लिए। ओके, इतना बदतर अवस्था रहता है ये जादू टोना करने वालों के घर में, जो फीमेल्स का लिंग यूज़ किया जाता है ऐसे गंदे काम का पावर जनरेट करने के लिए। ओके, तो वो गंदे पावर को गंदी तरह से ऑपरेट करने के लिए उनको जो लिंक की ज़रूरत है वो अपनी बहन के लिंक का यूज़ करते हैं, नहीं तो फिर अपने माँ का। ओके, कोई भी चलेगा उनके घर का। इसके लिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे। और फिर यहाँ पे ये भी लिखा है जो अपनी माता, चाहे वो सगी हो चाहे सौतेली, है ना,
अपनी सांस, है ना। तो ये सारे फीमेल्स बताया है और कुकर्म के बारे में बताया है। तो ये अभी के नज़ारे मेरे मेरे ऊपर जो अटैक करने के लिए पावर जनरेट किया जाता है, उसके अटैक्स ये यही तरह से लोग कर रहे हैं। ओके। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिप कर मारे, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों के को मानकर पूरा न करे, तब सब लोग कहे आमीन। पिता तुझे धन्यवाद करते हैं ज्ञान के वचनों से हमको भरने के लिए, हमें उन्नति में लाने के लिए, हमारे सामने से झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम तुझे देते हैं पिता, हमें और भी ज़्यादा मजबूत कर और तेरा योजना हमारे द्वारा तू पूरा कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना में डिवाइन ऑर्डरलीनेस पे लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमन्स 2 चैप्टर 12 वर्स 24, साम्स 91 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 12 वचन से 20 वचन, भजन संहिता 91 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में और पर्सनल टाइम में पढ़ेंगे, व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। जब हम अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ रहे होते तो परमेश्वर के आत्मा का कहना हम मान सकते हैं, हमारे जीवन में उसको हम स्वीकार सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा करने के लिए ज़रूरी नहीं सबने ही ऐसे अकेले में बैठकर पढ़ना चाहिए। हम जैसा पढ़ना है पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना चाहिए और परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।